मैं सब्जेक्ट के बाद सीधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, मैं सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेता था और साइमल्टेनियसली तो क्वेश्चन सॉल्व करता ही नहीं था। और अगर आपने किसी क्वेश्चन पे कुछ सीखा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया तो आपने वो क्वेश्चन वेस्ट कर दिया, वो लर्निंग वेस्ट कर दी। वो टेस्ट सिर्फ उन बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए थे जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग ही नहीं करी है, तो उन बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए वो टेस्ट था, मुझे ऐसा लगता है। जिस दिन गेट था उस दिन उसका पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया, वो नर्वस हो गया, सिली मिस्टेक्स कर दी, तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, उसने सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर किया था और उसी ने उसको हेल्प किया इंटरव्यूज में भी, अमेजोन के। Hello everyone. In this video today, we are going to interview a person who has got AIR 145 rank in GATE CSC exam 2021, and he has done this with the help of self-study only, without any coaching. And finally, he has chosen the ISC Bangalore for the MTech in the CSC branch, and he has got offers from the various IITs also, but he has chosen the ISC according to his decision, and the person name is Burhan. So we will be seeing in this interview that how Burhan managed to get this good rank in the GATE exam, and what is the journey behind the GATE exam, how he prepared, what are the things that he taken care of while preparing for the GATE exam, and how he managed to get into the ISC Bangalore, and what are the interview process and the test process for getting the admissions at the ISC this year. So let's welcome Burhan. So hi Burhan, welcome to our today's interview. So how are you? Yeah, hello. Yeah, I'm doing good. And how are you doing? Yeah, I'm also doing good. So let's start our today's interview. So first of all, congratulations you, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी रैंक ली है गेट में AIR 145, and plus you have also got the admission at ISC Bangalore. So congratulations for all that. Yes. So how are you feeling? Thank you very much. Yeah, I'm feeling really good. It's like एक ड्रीम पूरा हुआ है। ISC का एक ड्रीम था और Yeah, it's like very big achievement for me. because you are going to a world-renowned institute, so like yeah, you are excited also to go to the campus. Yes. Yeah. Yes. So yeah. Yes. So let's start our today's interview. Okay. So पहला क्वेश्चन है कि आपने लाइक इंजीनियरिंग में आने का कैसे सोचा, और अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए. इंजीनियरिंग मैंने आने के लिए 12th क्लास में ही सोच लिया था, बिकॉज कंप्यूटर साइंस was my optional subject. So I was confident that I will be doing good in computer science field. So I chosen engineering. So मैंने engineering का 12th क्लास के बाद ही like join कर लिया था engineering college. Like in 12th also I didn't prepare for JEE very well. So I was not confident that I will be performing good in next year also. So I joined one college in my city in Indore only for engineering and in computer science and engineering. Okay. So you thought कि ड्रॉप करना इतना ठीक नहीं रहेगा, तो you joined the college only. Okay. So the next question is कि आपने कब सोचा कि आपको गेट एग्जाम लिखना चाहिए और गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? आफ्टर 12th ओनली मैंने सोच लिया था कि आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट, बट नॉट लाइक पूरा 100% श्योर नहीं था. बट फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट गेट एंड I did a lot of research about GATE and its prospects and its benefits. Okay. So from third semester onwards, I was inclined towards GATE, and fourth semester, I think from fourth semester or third semester, I started prepared thoroughly for GATE subjects. जब आपने ये स्टार्ट किया अपना गेट का, तो लाइक वी वांट टू नो व्हाट वाज द होल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर योर गेट एग्जाम, एंड हाउ डिड यू कवर द टोटल सब्जेक्ट्स. लाइक कई लोग होते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको पूरा डीप में पढ़ते हैं, यानी डेप्थ वाइज. कुछ होते हैं कि ब्रेथ वाइज, कि थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेते हैं धीरे धीरे करके, है ना, और फिर बाद में उसको डेप्थ वाइज कवर करते हैं. तो आपने किस तरीके से चीज़ों को कवर किया? इन शॉर्ट, व्हाट वाज योर whole preparation strategy for the GATE exam? Yes, I was preparing for 2 years from after second year only. अच्छा. So मेरे पास बहुत टाइम था, और इस टाइम में मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज चेंज करी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. Like for if I'm in home for 2-3 months, then my strategy will be different. If I'm going somewhere else, then my strategy will be different. During internship, my strategy was different. But the basic thing I followed is for completing subjects,
मैंने जब सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहा था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट। सो मैंने सब्जेक्ट्स को शुरू से ही कॉन्सेप्ट उनके सही से पढ़े थे जो गेट के सब्जेक्ट्स थे। एंड लाइक फॉर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी व्हाट आई डिड, आई कंप्लीटेड सब्जेक्ट। सो मैं सब्जेक्ट के बाद सीधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, मैं सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेता था और साइमल्टेनियसली तो क्वेश्चन सॉल्व करता ही नहीं था। अच्छा For example, I have completed theory of computation today. Okay, so if I am starting some subject, like for example I am starting data structures, so मैं सोचता था कि if I am doing third subject, like I have done talk and then data structure, then if I am on algorithms, so I will be doing questions of theory of computations along with algorithms subject. सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। तो एक लाइक पुराने सब्जेक्ट्स भी रिवाइज होते जाते थे और एक नया सब्जेक्ट भी मैं पढ़ते जाता था। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, एक बेसिक स्ट्रेटजी। और मैंने क्वेश्चंस के लिए सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड भी करता हूँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। मैंने उन क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है बिकॉज दे आर द गोल्डन क्वेश्चंस फॉर अस। वो उन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने किसी क्वेश्चन पे कुछ सीखा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया तो आपने वो क्वेश्चन वेस्ट कर दिया, वो लर्निंग वेस्ट कर दी। सो मेरा ज़्यादातर टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में गया है, नॉट इन वर्कबुक्स एंड नॉट इन टेस्ट सीरीज। तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप ठीक तरीके से करेंगे तभी उसका फ़ायदा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। Yes. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो किस किस तरीके से करने चाहिए और उनमें क्या डूज एंड डोंट्स हमें ध्यान देने चाहिए ताकि हम पूरा फ़ायदा ले सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। जब अनलेस एंड अनटिल you have tried all the possible solutions, all the possible steps that can be the answer. So मैं सारे solutions ट्राई करने के लिए आपको पहले, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसके कंसेप्ट्स पे जाना है। अगर उसके कंसेप्ट्स में पढ़ने के बाद भी आपको उस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं आ रहा है, अगर आप स्टक हो गए पूरी तरह से, तो आप फिर उसकी बुक को रेफर कर सकते हैं या कोई ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, बट उसका स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन देख लेना। आपको कभी वो क्वेश्चन का लॉजिक याद नहीं हो सकता उसकी वजह से। तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड इस चीज़ पर कीजिए कि आपने उसमें कितना सोचा। आप सॉल्यूशन तो आप एंड में देख ही लेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, आप आंसर देखिए, अगर आप आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप फिर दूसरा सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। या पुरान आपने ये ठीक बताया कि पीवाई की क्वेश्चंस को अगर हम ठीक तरीके से ही सॉल्व करेंगे देन उसका फ़ायदा है, और क्योंकि सॉल्यूशन तो हमको एट लास्ट पता ही चल रहा है, बट अगर हम सॉल्यूशन को पहले अलग अलग बुक से रेफर करें, कंसेप्ट को समझ करके तब अपने आप सॉल्व करें क्वेश्चंस को, और जब ना मिले तब देन फाइनली वी कैन गो फॉर द एक्चुअल सॉल्यूशन। सो या दैट वाज द मेन पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो रिवीजन होता है हम गेट सब्जेक्ट का जब करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कैसे करते थे और एक सही रिवीजन सब्जेक्ट्स का कैसे करना चाहिए ताकि हम पीछे वाले जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको भी हम याद रख सकें? Yes, revision is the second important thing after previous year questions, according to me. रिवीजन करने के लिए जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है तो मैंने शुरू के 2 या 3 बार जब रिवीजन किया तो फुल सब्जेक्ट का रिवीजन किया है। लाइक फॉर द रिवीजन first you need to know that your notes should be precise and everything should be there in your notes. हमारे नोट्स में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अगर आप नोट्स देखो तो आपको जो नोट्स के बाहर कोई ऐसी चीज़ जो गेट में आ सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको लास्ट में लिख के रखिए या कहीं पर वो नोट डाउन करके रखिए, बट नोट्स जब आप रिवाइज करो तो आप सारी चीज़ें एक बार में देख पाओ, आपके नोट्स इतने सफिशिएंट होना चाहिए। सो मैंने शुरू के जो 2-3 बार जब रिवाइज कर रहा था तो मैंने पूरे नोट्स रिवाइज करे थे, सारी चीज़ें रिवाइज करी थी, बारीकी से सारी चीज़ें रिवाइज करी थी। बट जब मैंने टेस्ट चालू कर दिए थे 2-3 रिवीजन साइकिल के बाद जब मैंने टेस्ट चालू कर दिए थे तो जिससे मुझे मालूम पड़ जाता था कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने गलत करे हैं या इस टॉपिक के क्वेश्चंस में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन रिवाइज करता था। और बाकी कंसेप्ट जो कुछ ईजी क्वेश्चंस होते हैं जैसे DFA के क्वेश्चंस हो गए या डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो ये जो
बेसिक क्वेश्चंस रहते थे तो उनके टॉपिक्स बार बार मुझे रिवाइज नहीं करना पड़ते थे। और पर मैं ध्यान रखता था कि अगर 3 या 4 मंथ्स हो गए या कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट को मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करा, तो फिर मैं उसको एक बार और रिवाइज कर लेता था। ये मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी थी। ओके, गुड। तो जैसा आपने बताया कि आप सेकंड ईयर से इस गेट की पूरी प्रिपरेशन आपने चालू कर दी थी, तो क्वेश्चन है कि लाइक सेकंड ईयर देन थर्ड ईयर और अभी आपने लाइक जब एग्ज़ाम दिया था, तो उससे पहले इतना समय में आपने कॉलेज को, मतलब कॉलेज में भी आपको स्टडीज़ करनी है, तो कॉलेज का टाइम और कॉलेज में फिर आपका लाइक लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट भी शुरू हुआ, तो इन सब चीज़ों का आपने मैनेज कैसे किया, कॉलेज एंड गेट? यस, कॉलेज टाइम में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट मैं ये कोशिश करता था कि थोड़ा थोड़ा पढूँ बट कंसिस्टेंट पढ़ता रहूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि एंड में बहुत सारा करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा अभी से करता चलूँ। तो मैंने सेकंड ईयर से इसीलिए स्टार्ट करी थी कि अब मुझ पर ज़्यादा लोड ना हो, मैं किसी सब्जेक्ट को 2 महीने में भी कंप्लीट करूँ, तो मुझे इस चीज़ का लोड ना रहे कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस सेमेस्टर के बाद कंप्लीट नहीं कर सकता या वैसा कुछ। सो इसीलिए मैं धीरे धीरे और कंसिस्टेंट प्रिपेयर कर रहा था, तो इसलिए टाइम तो मैनेज होता गया। बट लास्ट ईयर में जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो कॉलेज तो पूरी तरह से बंद था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मैं बहुत बार अटेंड नहीं करता था। टाइम फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम रहने लगा जब मैं फाइनल ईयर में था, और प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आना शुरू हो गई थी कॉलेज में। तो मैंने प्लेसमेंट के लिए कुछ सेपरेटली प्रिपेयर नहीं किया। मेरा मैथ्स अच्छा था, तो एप्टीट्यूड में भी मैं अच्छा परफॉर्म करता था। तो मेरा टारगेट था कि जो अच्छी कंपनीज आ रही है कॉलेज में या बाहर ऑफ कैंपस में भी, और जिसके टेस्ट हो रहे, तो मैं उनके टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता था, ताकि एक बैकअप ऑप्शन भी बन जाए। बट मैं इसके लिए जॉब ओरिएंटेड नहीं करता था कि किसी टेस्ट में अगर मेरा टेस्ट किसी कंपनी के लिए बिगड़ गया है तो उसके बारे में सोचता नहीं था मैं। मैं सिर्फ एक टेस्ट दे लेता था ताकि मेरा एक एक्सपीरियंस भी बन जाए, बस। हाँ, मतलब लाइक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस कि आगे के लिए मतलब एमटेक में जाते हैं तो भी आपका फ़ायदा रहेगा, और प्लस बैकअप ऑप्शन इज़ ऑलवेज यस, गुड ऑप्शन, है ना? बैकअप ऑप्शन भी इज़ ऑल्सो यस। गुड ऑप्शन। ओके, तो जब आपने गेट की पूरी स्टडीज़ करी थी, तो आपने जो बुक्स हैं, वो कौन-सी यूज़ करी? आपने रेगुलर बुक्स या कुछ सेपरेट नोट्स भी आपने गेट की स्टडी के लिए यूज़ किए? यस, प्रिपरेशन में बुक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट मैंने बुक्स को इतना ज़्यादा रेफर नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं बुक्स वैसे पढ़ता नहीं था। अगर मैं किसी टॉपिक में स्टक हो गया हूँ, तो फिर बुक्स से पढ़ लेने से आपको बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि वो टॉपिक किस चीज़ के बारे में, क्योंकि बुक में बहुत स्क्रैच से लिखा होता है। तो कभी आप किसी टॉपिक्स में किसी टॉपिक्स में आप ऐसे अटकते हैं कि आपको नहीं आ रहे, उसके क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, आपके नोट्स सफिशिएंट नहीं है, तो आपको उसके लिए एक बार कंसेप्ट को नए तरीके से पढ़ना है, तो आपको बुक से रिफर करनी चाहिए। बुक से कभी कभी तो क्वेश्चंस डायरेक्टली सेट हो जाते हैं बुक के बीच में से। तो बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो, तो सबसे पहली चॉइस ये रहना चाहिए कि आप बुक से ही पूरा प्रिपेयर करो। Okay. So you also referred some other notes or some YouTube lectures or something like that also? यस, बिकॉज समटाइम कोई कंसेप्ट इतने टफ होते हैं जो आपको पढ़ने से याद नहीं हो सकते, पढ़ने से समझ नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। Yes. तो उन कंसेप्ट्स के लिए अगर आप किसी लेक्चर को एक बार देख लेते हैं, यूट्यूब पर एक बार देख लेते हैं, भले वो पूरी तरह से आपको सफिशिएंट ना लगे, बट आपको उस टॉपिक का जब एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है इजी लैंग्वेज में, तो आप उस टॉपिक को बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आने लगता है, आपको बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं। तो आप एक ही टॉपिक को दो लोगों से पढ़ लेते हैं, तो वो और आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आपको ऐसे कोई टॉपिक लग रहे हैं जो आपके लिए टफ है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो आपको उसको यूट्यूब से या किसी और वीडियो ट्यूटोरियल से देख लेना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड के पास लेक्चर्स थे, तो मैं उसके लेक्चर से भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख लेता था। ओके, ओके। तो जैसा आपने अपनी जो पूरी गेट की जर्नी है या गेट की जो प्रिपरेशन है खुद अपने आप करी है, मीन्स आपने सेल्फ स्टडी से सारा कुछ कवर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो हमारा टेस्टिंग करने के लिए मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मॉक टेस्ट आपने कैसे किया? मतलब मॉक टेस्ट के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, और मॉक टेस्ट को मतलब आपने कैसे यूज़ किया ताकि आपका एक बेटर प्रिपरेशन हो जाए गेट के लिए? Yeah, for mock test, I have joined made easy test series,
और मेरी प्लानिंग थी कि मैं 2 और टेक सीरीज को ज्वाइन करूँ, अप्लाइड गेट की और ज़ील की, बट मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। सो मैंने ध्यान दिया कि मैं ज़्यादा टेस्ट देने से ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी पे ध्यान दूंगा। तो मैंने टेस्ट को नंबर ऑफ टेस्ट उतने ही रखे, बट मेरी एक्यूरेसी इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दिया। तो मेडिजी वाज हैविंग गुड टेस्ट। सो हाउ आई सॉल्व्ड मेडिजी टेस्ट सीरीज, मैंने जैसे पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एंड देन फुल लेंथ टेस्ट। वो ऑर्गेनाइज भी इसी तरह से होते हैं। सो मैं ये जब किसी टेस्ट को देता था, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट आई रिमेंबर दैट फॉर होल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आई विल बी सिटिंग, लाइक अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो मैं 3 घंटे टेस्ट टेबल पर बैठता था। अगर 1.5 घंटे का टेस्ट है तो 1.5 घंटा पूरा टेबल पे स्पेंड करता था। अगर मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ, बट मैं पूरा 1.5 आवर और 3 आवर्स में टेबल पर रहता था, ताकि उससे मेरा माइंड प्रिपेयर्ड रहे कि उन 3 घंटों के लिए जब मेन एग्जाम के लिए जाऊँ। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते कि मतलब 3 घंटे नहीं बैठ पाते, तो धीरे धीरे मैंने भी हैबिट बनाई थी। शुरू में मैं भी आधे घंटे भी नहीं बैठ पाता था, बट सबसे पहली चीज मैंने ये करी थी। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं कभी भी मार्क्स पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मार्क्स एक डिसअपॉइंटिंग होते कभी कभी। मैं सिर्फ रैंक देखता था मेरी। मेडिजी ने रैंक भी बताता है, रिलेटिव रैंक, हम कितने बच्चों में किस किस पोजीशन पे। तो मैं मेरी रैंक देखता था और मैं ये देखता था कि टॉपर ने कितने मार्क्स स्कोर किए। अगर टॉपर ने 80% मार्क्स स्कोर किए तो आप वो पेपर का लेवल बताता है कि आप उस पेपर में 80% मार्क्स स्कोर कर सकते थे, पर आपको 60% आए तो आपको 20% और इम्प्रूव करना है। मैं सिर्फ ये चीज़ें देखता था। और दूसरी बात, जब जो रॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं उसका सेक्शन अलग होता है, तो मैं डायरेक्ट रॉन्ग क्वेश्चंस पे और स्किप्ड क्वेश्चंस पे जाता था और उन क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे फिर से ट्राई करता था। अब इस बार मैं कभी जब सॉल्यूशन ट्राई करता था तो मैं 5 मिनट 10 मिनट हर क्वेश्चन पे देता था, ताकि मैं उस क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे ही कर पाऊँ। और अगर मैंने कर लिया है और मैंने क्या मिस्टेक करी थी उसको फिर मैं नोट डाउन कर लेता था। अगर नहीं कर पाया तो किस कंसेप्ट से लैग कर रहा था तो वो कंसेप्ट भी नोट डाउन कर लेता था। तो इस तरह से मैं ये ट्राई करता था कि अगर अगली बार वो टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसका मार्क्स चूकना नहीं चाहिए, या सिमिलर क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो वो मार्क्स कहीं जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि सिमिलर क्वेश्चन आ जाए या दोबारा सेम क्वेश्चन आ जाए तो कम टाइम लगे और एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा रहे, क्योंकि गेट में भी कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर क्वेश्चन हमें मिलते ही हैं। yes. तो इट इज़ अ लाइक गुड थिंग कि एक बार अगर हमारा कहीं भी टेस्ट सीरीज में देख लिया तो उस क्वेश्चन को हम ढंग से ही सॉल्व कर लें, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि आ भी सकता है वो, है ना। ओके, ये मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। मैंने 1 वीक पहले मेरे एक मेडिजी की टेस्ट सीरीज को मैं गो थ्रू कर रहा था और एक रॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने नोट डाउन नहीं किया था। तो मैंने उसको रॉन्ग क्वेश्चन को बराबर थोरोली देखा और नोट डाउन करा था उसको भी 1 वीक पहले ही, गेट से 1 वीक पहले। और एज इट इज क्वेश्चन मुझे गेट में मिला था और वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने 2 सेकंड में कर लिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देख ही रखा था। तो समटाइम्स इट बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। एंड ये भी है कि इम्पोर्टेंट कि जो क्वेश्चन किया है उसको हम समझ के करेंगे तो बेटर है, क्योंकि कई बार होता है सिमिलर क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा चेंज होके आता है क्वेश्चंस, तो हम सोचते हैं ये तो वही क्वेश्चन है, बट कई बार चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है और हम सोचते हैं वही क्वेश्चन है और हम गलत आंसर दे देते हैं, बिकॉज एट वन टाइम इट हैपेंड विद मी इन वन ऑफ द गेट अटेम्प्ट। यस, व्हेन स्टूडेंट्स, हम कभी मैंने भी बहुत बारी गलती करी थी शुरू में कि जो क्वेश्चन को जब फर्स्ट लाइन पढ़े तो परसेप्शन किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं बनाना है। कभी भी किसी क्वेश्चन के लिए हमें परसेप्शन सेट नहीं करना चाहिए कि ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप परसेप्शन सेट कर लोगे तो आप उसका प्रॉपर अप्रोच ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो आपको कभी भी परसेप्शन किसी भी क्वेश्चन के लिए सेट नहीं करना है कि डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन हो तो ईजी ही होगा, अगर ये सीओए का क्वेश्चन है तो टफ ही होगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पहले बराबर पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिवन क्या क्या है, उसके बाद आपको कुछ अप्रोच के बारे में सोचना है। एंड हियर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक यू कैन टेल कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमें दिख रहा है लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा है, तो कई सारे बच्चे लाइक समटाइम दे फील कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू क्वेश्चन बड़ा होने से या छोटा होने से आई थिंक इट डज नॉट डिपेंड कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपसे या नहीं हो पाएगा, राइट? क्वेश्चन बड़े होते तो कभी कभी क्वेश्चन बड़े होना भी बहुत हेल्पफुल चीज है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें गिवन होगी। अगर क्वेश्चन छोटा है तो आपको बहुत सारी चीजें एज्यूम करना पड़ेगी, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपके लिए एक बेनिफिट है। पर आप घबरा रहे हैं, जैसे आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन ही गेट एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप घबरा रहे कि नहीं, तो आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बट आप
ये मत सोचिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस जैसे पाइपलाइन के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज साइकिल निकालने वाले, वो क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें दे रखी कि साइकिल को स्प्लिट किया गया, फिर इस नैनो सेकंड की साइकिल्स थी, तो वो क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, बट उनका अप्रोच बहुत ईजी होते हैं। इजी होते हैं। तो आपको कभी बड़े क्वेश्चन देख के घबराने नहीं, कभी कभी छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इरिटेट भी करते हैं, और रॉन्ग आंसर छोटे क्वेश्चंस में ही आते ज्यादातर। आई थिंक दिस इज द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है. इट विल टेक टाइम और इट मे टेक टाइम, बट डू नॉट बी fearful of that. Okay. Yes. So like you told us about your whole complete journey of the gate and what are the do's and don'ts, और कैसे छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखें और तो हम एक सेल्फ स्टडी से भी हम एक अपने आप को बेहतर रैंक पे ला सकते हैं. और एज यू गॉट द गुड रैंक एंड यू ऑल्सो गॉट द एडमिशन एट IISc बेंगलोर, तो मतलब कोई चीज़ इतनी टफ नहीं है. मेन बात है कि आप उन चीज़ों को प्रॉपर अगर स्ट्रीमलाइन करके करेंगे तो मिल जाती है चीज़. तो यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लाइक आपने तो सेल्फ स्टडी से चीज़ें कर ली, तो कोचिंग आपको कैसा लगता है कि कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस है? क्या कोचिंग करनी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से ही गेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? लाइक जो भी हमारे व्यूवर्स ये देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है? हम दोनों के लिए अलग स्टूडेंट के लिए पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड, मतलब मैंने मेरा माइंड प्रिपेयर कर रखा था कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकता हूँ. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, टीचर्स के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मतलब इतना रिसर्च नहीं करना चाहते हैं. तो कोचिंग्स उनके केस में फिर उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इज नॉट द बैड थिंग दैट यू शुड नॉट डू एंड दिस. सो कोचिंग आपको लेना चाहिए अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको सब्जेक्ट आप बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, तो आपको कोचिंग लेना चाहिए. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, टाइम कम होता है, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें करना है, तो प्रॉपर गाइडेंस जब आपके पास होती है तो आप अच्छे से कर लेते हैं. बट आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, आप रिसर्च करने में भी मतलब आप इंटरनेट पे बराबर से क्वेश्चंस को रिसर्च कर सकते हैं, और तो आपको फिर सेल्फ स्टडी मोस्ट प्रिफर्ड होती है. और कोचिंग में जाने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ती है, बट ऐसा है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम आपका उस चीज़ों में बच जाता है जो गाइडेंस का टाइम है. आपको प्रॉपर गेट के लिए क्या करना है उस चीज़ में आपका टाइम बच जाता है. सो नाउ लेट्स मूव टू योर IISc जर्नी. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इस बार IISc में टेस्ट हुआ है ना, कि लाइक they took the test and then they took the interview, है ना, for the selection. तो can you tell us what was the test all about, और उसमें क्या क्या पूछा गया और इंटरव्यू में फिर क्या क्या पूछा गया? ओके, सो मैंने IISc में तीन ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया था. कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो तीनों ब्रांच के टेस्ट पैटर्न्स अलग अलग थे. कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था और बाकी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चंस थे. और कंप्यूटर साइंस एक प्योर कोडिंग टेस्ट था जिसमें 3 क्वेश्चंस कोडिंग के थे. सो मैंने तीनों टेस्ट अटेम्प्ट करे थे. तो कंप्यूटर साइंस में जो तीनों क्वेश्चन थे तो मॉडरेट लेवल के थे. एक इजी लेवल के क्वेश्चन, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन था, और 2 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे. अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर रखी है, जो अक्सर बच्चे कर ही लेते हैं 3rd ईयर में 4th ईयर में प्लेसमेंट के लिए, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे. वो टेस्ट सिर्फ उन बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए थे जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग ही नहीं करी है, तो उन बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए वो टेस्ट था, मुझे ऐसा लगता है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसा AI के लिए आपको एप्टीट्यूड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का और लीनियर अलजेब्रा का और बेसिक सी प्रोग्रामिंग का, तो उन्होंने उसी चीज़ का टेस्ट रखा था जिसमें 22-25 क्वेश्चंस थे और उसके बेसिस पे एडमिशन्स हुए. और कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में भी एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, बट उन्होंने फिर एक इंटरव्यू भी लिया था. अगर आप इंटरव्यू और टेस्ट दोनों में अच्छा परफॉर्म करते तो उन्होंने फिर उसके बेसिस पे एडमिशन दिए बच्चों. प्रिपेयर करने के लिए पहले जब क्लियर नहीं था कि कोडिंग टेस्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट से रिवाइज कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि गेट के रिगार्डिंग कुछ आएगा. मैथ्स का ज़्यादातर मैथ्स का प्रिपेयर कर रहा था. बट जब नोटिफिकेशन आया तो कोडिंग के लिए भी थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे लीड कोड पर और हैकर अर्थ पे, और फिर वो क्वेश्चंस इजी थे तो सॉल्व हो गए थे. मींस कोडिंग बेसिक अगर प्रोग्रामिंग आपने करी है तो इट विल बी ओके. अच्छा,
एंड लीनियर अलजेब्रा जो मैथ्स था वो भी हमने जितना अपना +2 में और आगे हम अपना इंजीनियरिंग में थोड़ा करते हैं उतना ही, इट वाज नॉट कि आपको पूरा पूरा अंदर का आना चाहिए, नॉट दैट स्टफ, यस, बट यू शुड नो द बेसिक कि प्रोबेबिलिटी में कैसे काम करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या मैट्रिसेस, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, आई थिंक जो कि जरूरी है आपके एज अ बेसिक फॉर द एआई। ओके, यस, सो इन शॉर्ट, Yes. अकॉर्डिंग टू यू, वैसे तो आपने बता दिया है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो इन सम ऑफ द लाइंस व्हाट आर द लाइक स्टेप्स टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड द इंटरव्यू फॉर द आईएससी? आईएससी जनरली हर ईयर टेस्ट नहीं रखता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, सीडीएस और एआई के लिए हर साल टेस्ट होता है। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे सीनियर ने रिकमेंड करा था आईएससी के कि आप गिलबर्ट स्ट्रैंज एमआईटी के लेक्चर्स देखिए, तो आपके लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने वो देखे थे, बट अगर आपने लीनियर अलजेब्रा शुरू से अच्छा पढ़ रखा है तो आपको वो भी लेक्चर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर नेक्स्ट ईयर सीएस के लिए आईएससी टेस्ट रखने वाला है, नहीं, ये आईएससी पे डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग करते रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपको जैसे इंटरमीडिएट अगर आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो आपको प्लेसमेंट्स के कोडिंग राउंड में भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको भी इजीली क्रैक कर पाएंगे। एज वेल एज जैसे आईआईटी कानपुर ने इस बार कोडिंग टेस्ट नहीं लिया, तो वो भी हर साल कोडिंग टेस्ट लेता है, तो आप आईआईटी कानपुर के कोडिंग टेस्ट में, आईआईटी दिल्ली के टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और मैथ्स आपको शुरू से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स से ही एप्टीट्यूड आप प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ्स, एप्टीट्यूड और बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंटली लीनियर अलजेब्रा। सो फाइनली आपने आईएससी चूज किया है, बट इसके अलावा आपका कहाँ एडमिशन हुआ था? मुझे ऑलमोस्ट सारे आईआईटी से ऑफर लेटर आ चुका था। तो मैं मद्रास और आईएससी में, आईआईटी मद्रास और आईएससी में कंफ्यूज था। For Bombay, I was sure that I will not be going for Bombay because hostels were not there. Okay. So IIT Madras और IISc में confusion था। So मेरा एक dream था शुरू से IISc, तो I have chosen IISc in first round itself. IITs में तो सबसे बेस्ट IIT बॉम्बे था, तो मैंने थर्ड ईयर में इसके बारे में बहुत बार सर्च करा था कि IIT बॉम्बे वर्सेस IISc। So IISc में मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी कि वहाँ की रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्लेसमेंट वाइज तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट एक आईआईएससी का कैंपस बहुत ग्रीन है और एक बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने को आपको मौका मिलेगा। सो एक आईआईएससी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट, बेंगलोर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। और आईआईएससी इज़ द लाइक रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनली। IIT Bombay is also the good brand, but IISc is the bigger brand in terms of research internationally. So that's why I choose an IISc in case if in future I have to go for PhD. That's why I think IISc is the good choice. Yes, हाँ, ये that is a good point कि research में IISc is like leading institute. तो yeah, if we have the further plan for the research and the PhD, then IISc is the like better option. So बुरहान, इस बार IISc ने टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो ये क्या सभी बच्चों के लिए कंडक्ट किया? क्योंकि लास्ट टाइम तक तो ऐसा होता था कि वो डायरेक्ट एडमिशंस लेते थे, मतलब डायरेक्ट बच्चों को उनके गेट स्कोर्स पर एडमिशन देते थे। यस, लास्ट ईयर तक तो सीएस ब्रांच के लिए वो लोग टॉप 50 बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट कर लेते थे और टॉप 50 बच्चों को ही एमटेक के लिए एडमिशन मिल जाता था। बट फॉर एआई और सीडीएस ब्रांच के लिए वो लोग टेस्ट लेते थे, शॉर्टलिस्ट करते थे बच्चों को। बट इस बार सीएस के लिए भी उन्होंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया और जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें से उन्होंने लाइक 300 रैंक्स तक या 150 रैंक्स तक ब्रांच के अकॉर्डिंगली उन्होंने इन्वाइट किया बच्चों को टेस्ट के लिए। एंड देन टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंगली वेटेज था, गेट स्कोर का भी और रिटर्न टेस्ट का भी, उसके वेटेज के अकॉर्डिंगली दे शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स फॉर फाइनली एमटेक। सो बुरहान, देयर इज अ क्वेश्चन कि जिन लोगों के भी लो रैंक आई है, कम रैंक आई है गेट 2021 में, तो उन्हें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या उनको ड्रॉप करना चाहिए या कहीं पर भी एडमिशन्स अगर मिल रहा है किसी भी प्राइवेट कॉलेज या कोई भी और कॉलेज में, तो उनको अभी के अभी ले लेना चाहिए एडमिशन्स? व्हाट इज योर सजेशन? यस, फॉर एमटेक, लाइक एमटेक में ऐसा होता है कि आपको हर कॉलेज में अच्छा एडमिशन नहीं मिल सकता है, लाइक आपको हर कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है कभी कभी। सो आपको
स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मैंने जैसा मेरा माइंड प्रिपेयर किया था कि या तो आईआईटीज या तो कुछ भी ना मिले, तो या तो रैंक मेरी 3000 के पार आना चाहिए या फिर मेरी रैंक इतनी अच्छी आए कि मुझे आईआईटीज मिल जाए। तो ये मेरा गोल था, अल्टीमेट गोल ये था मेरा। एंड मैं टॉप 50 के लिए हमेशा प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे ये था कि या तो टॉप 50 आए या तो कुछ भी रैंक ना आए। तो मैं इस माइंड सेट कर रहा था, क्योंकि मेरा मानना है कि आईआईटीज, कुछ ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और लाइक बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके अलावा एमटेक के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको फिर मिलती नहीं है, क्योंकि आप अगर 2 इयर्स और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलना चाहिए। तो अगर आपकी रैंक कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड ट्राई फॉर अ गुड जॉब। इफ यू आर हैविंग द गुड जॉब इन योर हैंड, सो गो फॉर इट and prepare along with it for the gate for the next year. So ये मेरी एडवाइस रहेगी। अगर आपकी रैंक अच्छी, तो पहले आपको ट्राई करना चाहिए। आपको रिसर्च प्रोग्राम्स में अगर एडमिशन मिल जाता तो आप वो ट्राई कीजिए। तो एक जैसे आईआईटी बॉम्बे का रिसर्च प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वहाँ के प्लेसमेंट्स टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम से भी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको वो ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद एमएस ट्राई कर सकते हैं आप। अगर आप उसके बाद भी आपकी रैंक इतनी अच्छी भी नहीं है कि आप वो भी नहीं मिल रहा है, तो आप go for a job or try preparing with your job only. So you will get experience also, and you will be preparing for your subjects also. Great. So any last message for our viewers? Yes, मैं last message ये देना चाहूँगा कि be consistent and prepare, like try to prepare more from questions and revision. That's the only two important things like helped me during my preparation. So these two things are really important, and like आप इस टाइम को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिग्रेट नहीं करेंगे फ्यूचर में, बिकॉज एमटेक के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपका अच्छा कॉलेज नहीं है और आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, तो आप थॉरोली इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। एंड आईआईटीज़ में कोई फीस का भी इतना इशू नहीं होता है कि आप फीस भी थोड़ी सी हाई रहेगी। जो गेट प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आप पूरी आपको आखिरी में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मुझसे कुछ रह गया, या मैंने ये नहीं किया, अगर ये करता तो हो जाता, ये टेस्ट सीरीज लेता तो हो जाता मेरा सिलेक्शन। इस आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप पहले से सारी मैंने 100% आप अपना दे दीजिए, ताकि आपको आखिरी में इस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि आपने कुछ कमी छोड़ी है। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन लक। आफ्टर योर प्रिपरेशन इट डिपेंड्स ऑन लक। बी प्रिपेयर फॉर इट। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, 2.5 ईयर्स से कर रहा था, कानपुर का है। सो ही प्रिपेयर्ड लाइक वेरी, ही हैज डन लाइक, मेरे को पता है कि उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी। मैं कभी कभी उससे डाउट्स पूछता था, बट उसका जिस दिन गेट था उस दिन उसका पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया, वो नर्वस हो गया, सिली मिस्टेक्स कर दी, तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो इसे उसने हार नहीं मानी कि गेट कोई एंड नहीं था। वो थोड़ा डिप्रेशन में भी था कि यार डिप्रेस हो गया कि यार मेरे साथ, मतलब इतनी प्रिपेयर करने के बाद मेरी रैंक नहीं लगी। बट उसका फिर मेरे पास 1 मंथ बाद मेरे पास कॉल आया, जब मेरे गेट का रिजल्ट भी नहीं आया था, मेरे पास गेट के रिजल्ट के बाद कॉल आया कि हाई कि कैसे हो, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा अमेजोन में हो गया। सो दैट वाज द रियली गुड न्यूज़ फॉर मी। सो लाइक बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन। आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती। उसने सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर किया था, उसी ने उसको हेल्प किया इंटरव्यूज में भी, अमेजोन के। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हमें कहीं भी हार नहीं माननी। जो चीज़ हमने पढ़ी है वो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह काम आएगी ही आएगी। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस पर जिंदगी एक पॉइंट पर रुक नहीं जाती है, आपको आगे बढ़ते रहना है, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर आपकी नॉलेज जरूर काम आएगी। बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। यस, आई थिंक आपकी जर्नी से हमें ये पता चला कि अगर IIT JEE उसमें अगर आपका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो कोई बात नहीं। देयर इज अ लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, है ना, जहाँ हो सकता है आपकी लाइफ में आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। जैसा आपके केस में हुआ है कि आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया, है ना, हार नहीं मानी और दूसरा प्रिपरेशन किया। Yes. वहाँ पर आपने एक इंस्टीट्यूट, Yes. हर एक एस्पायर करता है, ISC बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपने एक सीट ली। Thank you very much. It was a really nice conversation, and I hope this video will be helpful for students, and I wish you all the students best of luck, and be consistent with your preparation. Thank you very much. So I hope you have really enjoyed this interview with Burhan, and if you have any comment, question, suggestion, please write down into the comment box below and we will answer them. And if you want to contact Burhan, you can contact him on his LinkedIn profile and the Telegram. So both the links of the LinkedIn and the Telegram of Burhan, they are in the description below. You can find there.
So do like and share this video among your friends so that they can also get benefit of this interview with Burhan. And also subscribe this channel, press the bell icon for further notification of the upcoming videos, because I make many such interview experiences and other videos on the computer science and the live sessions. So you can get the notification of those videos if you press the bell icon just now. You can also find the other past interview experiences and my experience also in the playlist Interview Experience. You can find the link of that playlist in the video description below, so do check it out. And this was all about this video, so thank you, bye bye.